السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے تمام فیل امیدواروں کو کامیاب کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت کا بڑا فیصلہ، ریاستی وزیر نے کیا صحافتی بیان جاری۔ بحیثیت تلنگانہ اسٹیٹ وومن فائنانس کارپوریشن چیئرمین آکولا للیتا نے اپنے عہدے کا لیا جائزہ۔ متحدہ ضلع ایم ایل سی کے کویتا ایم ایل اے بیگالا گنیش گپتا، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی و دیگر نے دی مبارکباد۔ سرکاری عہدیداروں کے تبادلے کے لیے ریاست بھر میں اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے رہنمائانہ خطوط جاری۔ اندرون ایک ہفتے تمام مراحل کو مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ سیاست کے نام پر مذہبی تفریق پیدا کرنے و ایک ہی مذہب کی عوام کو نشانہ بنانے والے افراد کے خلاف محکمہ پولیس سخت سے سخت کارروائی کرے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے وفد کی پولیس کمشنر کارتیکیہ سے ملاقات۔ عرس شریف حضرت کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت فتح اللہ شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا حسب روایت جوش و خروش کے ساتھ اہتمام، عوام کی کثیر تعداد نے کی شرکت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عرس شریف حضرت کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ و درگاہ فتح اللہ شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کنٹیشور کا سالانہ عرس شریف کا جوش و خدت کے ساتھ حسب روایت اہتمام، ہندو مسلم تمام مذاہب کے افراد کی شرکت، وہ کیے کار خیر کے کام انجام۔ شہر نظام آباد کے علاقے کنٹیشور میں واقع تاریخی درگاہ حضرت کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ و درگاہ فتح اللہ شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کا خوشی و عقیدت کے ساتھ اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر وقف بورڈ کی خصوصی ٹیم نے نظام آباد کا دورہ کرتے ہوئے عرس شریف کے انتظامات کا جائزہ حاصل کیا۔ حسب روایت درگاہ شریف کی سجدہ نشین کے افراد خاندان کی جانب سے سندر شریف بعد نماز مغرب پیش کیا گیا۔ اس موقع پر وقف بورڈ کی جانب سے عوام کے لیے تام کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کرتے ہوئے ذکر و افکار کیے۔ شہر نظام آباد امن کا گہوارہ، گنگا جمنی تہذیب کی ایک زندہ مثال۔ شہر کے ماحول کو خراب کرنے و مقدس مقامات کے نام پر سیاست و پرامن فضا کو مقدار کرنے کی سازش ناقابل برداشت۔ فرقہ پرستوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا ڈپٹی میئر ادریس خان و مجلسی کارپوریٹرز کے وفد کی پولیس کمشنر کارتیکیہ سے ملاقات و کی نمائندگی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین شہر نظام آباد کی وفد نے ڈپٹی میئر ادریس خان و شہری صدر مجلس اتحاد المسلمین فلور لیڈر بلدیہ شکیل فاضل کی قیادت میں تمام مجلسی کارپوریٹرز نے ضلع پولیس کمشنر کارتیکیہ سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور تحریری یادداشت حوالے کرتے ہوئے کہا کہ شہر نظام آباد صدیوں سے امن و بھائی چارگی کا گہوارہ رہا ہے، جہاں پر ہر مذہب کے عوام نے مل جل کر کاروبار کیا اور آج بھی جاری ہے، لیکن اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے عوام کو گمراہ کن پیغامات کے ذریعے بوکھلاہٹ کا شکار بناتے ہوئے اس ماحول میں خوف پیدا کرتے ہوئے ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنا رہے، جس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد علی باغبان، افسر بیگ محمد نصیر، محمد مستحسن، سید رفیع الدین، اعجاز حسین، محمد عبدالغفور مقیم، معاون کارپوریٹر ارشد پاشا، محمد شہباز و دیگر موجود تھے۔ مسجد دھارو گلی کی اراضی پر کمرشل کمپلیکس کے تعمیر کے کاموں کا خطیب و امام جامع مسجد نظام آباد مفتی سید اکبر صاحب، ڈپٹی میئر ادریس خان و TRS سینئر کارپوریٹر محمد عبدالقدوس کے ہاتھوں آغاز۔ آج شہر نظام آباد کے علاقے احمدی بازار میں واقع مسجد دھارو گلی کی اراضی پر کمرشل کمپلیکس کی تعمیری کاموں کا آج مفتی سید اکبر صاحب
खतीब व इमाम जामा मस्जिद डिप्टी मेयर इदरिस खान, शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दी फ्लोर लीडर शकील फाजिल व टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इस तकरीब का आगाज हजरत की दुआओं से किया गया। वाज़ेह है कि इस कॉम्प्लेक्स से हासिल होने वाली आमदनी को मस्जिद के अखराजात व फलाही कामों के लिए इस्तेमाल करने का इंतजामिया ने इजहार किया। इसी तरह मस्जिद की इन फलाही कामों पर तमाम शुरका ने खुशी का इजहार किया। इस तकरीब में निजामुद्दीन सीनियर इंजीनियर अहमद वलीउल्लाह सिद्दीकी, सीनियर सहाफी मोहम्मद यासीन, टीआरएस कायद जमील, TNSF कायद वली व दीगर मौजूद थे। जरूरत पड़ने पर रात का कर्फ्यू नाफिज करें, रियासतों को मरकजी हुकूमत का ताज़ा अलर्ट जारी। मुल्क की कई रियासतों में ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे के रुझान को देखते हुए आज मरकजी हुकूमत ने रियासतों को अलर्ट जारी किया है और वाज़ेह है कि रियासतों को जरूरत पड़ने पर रात का कर्फ्यू नाफिज करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बाज़ रियासतों में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने रियासतों को मंगल के रोज अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। जिन मुकामात पर केसेस सामने आ रहे हैं वहाँ खुसूसी हिकमत अमली अख्तियार करने और एहतियाती तदाबीर पर अमलावरी की हिदायत दी गई। इस सिलसिले में वारूम कायम करने की भी हिदायत दी। हुजूम को जमा होने से रोकने और अवामी ट्रांसपोर्ट निजाम पर खुसूसी नजर रखने का मशवरा दिया। मरकजी हुकूमत ने कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना की पुरानी शक्ल से 3 गुना ज्यादा फैलाव की ताकत रखता है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में आज ओमिक्रॉन के 4 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 24 हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते भी मरकजी हुकूमत ने इस तरह का अलर्ट जारी किया था। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए शहर के फंक्शन हॉल में मुनाक़दा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए हल्के के पैरकिट में वाक़िअ तिरुमला गार्डन में मुनाक़दा शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की व नेक तौक़ात वाबस्ता किए। इसी तरह से महालक्ष्मी फंक्शन हॉल में मुनाक़दा शादी तकरीब में शिरकत की व नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की व बातज़ा इन्होंने वेंकटेश्वरा कॉलोनी में मुनाक़दा घरभरानी तकरीब में शिरकत करने के अलावा दीगर फंक्शन हॉलों में मुनाक़दा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। मिसेज आकुला ललिता सदनशीन रियासती विमेंस फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जायजा लेने पर MLC के कविता ने दी मुबारकबाद। मुत्तहदा जिला निजामुद्दीन MLC के कविता साहिबा ने साबिका रुकन कानून साज कौंसिल आकुला ललिता ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े कॉर्पोरेशन अज़ा में बहैसियत सदनशीन तेलंगाना विमेंस फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तौर पर ओहदे का जायजा लेने पर दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की व मुस्तकबिल में आला ओहदों पर फायज होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MLAs व अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। 25 दिसंबर को क्रिसमस तकरीब के पेश नज़र कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय और महकमे पुलिस मुलाजमीन की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। जिले निजामुद्दीन कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस त्यौहार के मौके पर जिले में मुकीम ईसाई तबके के अवाम को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कोरोना वबा के पेश नजर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा कोविड-19 उसूल और ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करते हुए क्रिसमस तकारीब को खुशी के साथ मनाने का इजहार किया। जमीयतुल उलमा निजामुद्दीन के ज़ेर एहतिमाम इस्लाह मुआशरा शऊर बेदारी मुहिम। मुल्क की सबसे बावक़ार मुनज़्ज़िम जमात जमीयतुल उलमा ने बाज़ाब्ता इस्लाह मुआशरा कमेटी तश्कील देकर समाज और मुआशरे से बुराइयों और बदउनवानियों का खात्मा करने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। इन ख्यालात का इज़हार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने आज बाद नमाज जुम्मा मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में मुनक़्क़दा शऊर बेदारी प्रोग्राम और मीडिया से खिताब करते हुए कहा और नौजवानान निज़ामुद्दीन से अपील की कि वो सालेह मुआशरा और अच्छी सोसाइटी की तश्कील के लिए अपने आप को पेश करें। इंसदाद जराइम और मुआशरे के सुधार के लिए जनाब मौलाना हाफिज पीर शब्बीर साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने मंडल शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का फैसला किया, जिसके लिए अलहाज हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी कोशा है और मेहनत कर रहे हैं। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ने कहा कि समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं जिनसे हमारे दीन व मजहब पर दुश्मनान इस्लाम आसानी से उंगली उठा
اٹھا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اسلامی طرز زندگی اختیار کرتے ہوئے رسم و رواج اور دیگر موقعوں پر ہونے والی خرابیوں سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ضلعی سیکریٹری مفتی عبدالمبین قاسمی نے کہا کہ انشاءاللہ محلے واری سطح پر مساجد کمیٹی کے ذمہ داران اور علماء و ائمہ اکرام کے ہمراہ بہت جلد ایک کانفرنس کی جائے گی، جس میں ملک و ملت اور قوم مسلم کے سدھار اور نوجوانوں کے اوقات کے صحیح استعمال کے حوالے سے مشاورت کر کے جمعیت علماء کے تحت کوئی لاہ عملی تیار کی جائے گی تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا سکیں۔ مولانا ارشد علی قاسمی نے کہا کہ آج شراب نوشی، کرکٹ میچ و دیگر کھیلوں پر سٹہ اور روزمرہ مزدوری کرنے والے طبقہ مٹکا بازی و دیگر برائیوں میں اپنی دولت لگا کر زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ حقہ نوشی کو ایک فیشن تصور کیا جا رہا ہے، نیا سال منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ سب غیر اسلامی و غیر اخلاقی رواج ہے جن سے معاشرے کو پاک کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کر اس طرح محلہ محلہ محنت کریں تو انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ اس موقع پر صدر بیت المال سوسائٹی جناب یحییٰ ظفر، مالک بجلی بیٹری مولانا اعجاز قاسمی، مولانا مبین قاسمی، مولانا قمر الدین قاسمی، مولانا عبد الناصر قاسمی، مولانا الماس قاسمی، حافظ عامر، حافظ عبدالولی، حافظ ابراہیم، حافظ نسیم اللہ غازی، مولانا صادق قاسمی، حافظ ذکیل الدین اور شہر کے دیگر علماء اکرام و افواج نے شرکت کرتے ہوئے اصلاح معاشرہ مہم کو کامیاب بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ الحمدللہ ہمارے ریاستی صدر محترم جناب الحاظ حافظ پیر شبیر صاحب اور ہمارے سرگرم متحرک جنرل سیکریٹری جناب حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب پوری ریاستی سطح پر یہ محنتیں کر رہے ہیں۔ حد کے زیر انتظام اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تحت یہ پروگرام نظام آباد میں مکہ مسجد سے آغاز کیا جا رہا ہے اور ہم تمامی مسلمانوں سے شہریان نظام آباد سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایک برائی کو لے کر کے اٹھیں کہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور الرحمن الرحیم، آج بعد نماز جمعہ مکہ مسجد سے یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا کہ کچھ بینر کی شکل میں معاشرے میں جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، جہیز کا مسئلہ ہے، اسی طرح نشہ بندی کا مسئلہ ہے، اسی طرح شراب کا مسئلہ ہے، بے پردگی کا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان بچوں میں بچیوں میں جو اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو ایک مجلس میں یا ایک موقع پر ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ غرض یہ ہے کہ ہم پوری امت کی اور پورے ہمارے شہر کے مسلمانوں کی، یہ ہمارے جو ہے علماء کرام کی پوری جماعت ہے، ہم ہر محلے میں اصلاح معاشرہ کا جلسہ کر رہے ہیں۔ کمیٹیاں اصلاح معاشرہ کی بنائی جا رہی ہیں، ایک مرکزی کمیٹی ضلع کے لیول پر بنائی گئی ہے، مفتی عبدالمبین صاحب کو اس کا سیکریٹری بنایا گیا، اور ہر جگہ چندور میں بنائی گئی ہے، نندی پیٹ میں بنائی گئی۔ اس وقت جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے جو اصلاح معاشرہ کی مہم شروع کی گئی ہے، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی برائیوں میں ہمارے نوجوان ملوث ہوتے جا رہے ہیں، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اس سے ہم کو مایوس ہونا بھی نہیں ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم کو ان کی تربیت کرنا ہے، ان کے اندر خوف خدا، خشیت اللہ کی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نظر وقفے کی اور حضرت صوفی کمال خان، ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیہ علاج صرف 72 گھنٹوں میں ممکن، جیسے جادو ٹونا، اوپری ہوا، کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہو، شادی میں رکاوٹ، پسند کی شادی، لو میرج، نوکری میں رکاوٹ، زمین جائیداد کا جھگڑا، حاسدین سے نظر کا لگنا، بار بار کاموں کا رکنا، بیماری میں دوا کا نہ لگنا، گلف جانے میں رکاوٹ، عدالت کے کیسوں سے چھٹکارا، دشمن و سوتن سے چھٹکارا، میاں بیوی کے آپسی جھگڑے، پڑوسی سے جھگڑے، دکان و مکان کی بندش و شیکرن وغیرہ کے مسائل کا حل صرف 72 گھنٹوں میں ممکن، فیس صرف 51 روپے۔ روبرو ہیڈ پوسٹ آفس، اعظم روڈ، نظام آباد، سیل نمبر 8897811836۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ بالکنڈ القسملی منڈل کے مقام پر مورتاڑ ایم پی پی شیوالنگو سرینیواس کی صدارت و محکمہ ریونیو کے زیر نگرانی میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی و شادی مبارک چیکس کی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں استفادہ کنندگان میں تقسیم۔
जिले निजामाबाद बालकुंड अलखसमली मंडल के मुकाम पर मोरताड़ एमपीपी शिवलिंगु श्रीनिवास की सदारत व महकमे रिवेन्यू के जेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले लाइब्रेरी चेयरमैन LMB राजेश्वर ने शिरकत करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत, रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब 75 मुस्तहिकीन को मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगार ने चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वज़ीर वेमला परेशान रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। शेख सलमा तेलंगाना की पहली मुस्लिम खातून IPS ऑफिसर, नॉन कैडर से IPS ओहदे पर तरक्की। जिले खम्मम में मसरत की लहर। जिले खम्मम की शेख सलीमा को रियासत की पहली मुस्लिम IPS ऑफिसर बनने का एजाज हासिल हुआ है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा नॉन कैडर IPS तरक्की की फहरिस्त में शेख सलमा का भी नाम शामिल है। जिले खम्मम के चिंतकानी मंडल के कुमटलागुड़ा मौजे से इस मुस्लिम IPS ओहदेदार का ताल्लुक है। शेख सलमा लाल बहादुर की बड़ी दुख्तर है, जो खुद भी खम्मम में सब इंस्पेक्टर पुलिस की हैसियत से रिटायर हुए हैं। शेख सलमा ने डिग्री तक मुकामी सतह पर तालीम हासिल की। इसके अलावा काकतीय यूनिवर्सिटी से MSc बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने के बाद साल 2007 में ग्रुप 1 के जरिए DSP मुंतखब हुई। जिले आदिलाबाद के कागज नगर में बहैसियत DSP पहली पोस्टिंग हासिल की। इसके बाद गबरपेट की PTC में वाइस प्रिंसिपल, फिर माधवपुर में एडिशनल कमिश्नर एडमिन खिदमात अंजाम दी। फिलहाल रचकुंडा कमिश्नरेट में वो बहैसियत DCP खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शेख सलमा की 2 बहनें और एक भाई है। एक बहन जरीना हाल ही में आंध्र प्रदेश में ग्रुप 1 का इम्तिहान तहरीर करते हुए मेंस को मुंतखब हो चुकी है। इंटरव्यू में कामयाब होने पर वो भी सरकारी मुलाजिमत हासिल कर सकती है। एक और बहन मुनी खैरताबाद में MVI की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही है। भाई कासिम हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में बहैसियत डॉक्टर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शेख सलमा के शौहर सॉफ्टवेयर शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। शेख सलमा IPS ऑफिसर बनने पर वालिदैन और अरकान खानदान के अलावा जिले खम्मम के अवाम ने मसरत का इजहार किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जेर निगरानी में मंडल ओहदेदार व रेड क्रॉस मेम्बरान के हाथों SC-BC हॉस्टल के तलबा में ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लाई गई। नवीपेट मंडल के मुकाम पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मंडल सदर मोहम्मद मोइजुद्दीन के जेर निगरानी में SC-BC हॉस्टल में मुनाकिदा ब्लैंकेट की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले इंडियन रेड क्रॉस जिले चेयरमैन अंजनेलू, तहसीलदार लता, MPDO साजिद अली, SI याकूब के हाथों तलबा में ब्लैंकेट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर जिले के रेड क्रॉस चेयरमैन अंजनेलू ने कहा कि जिले में सर्दी की शिद्दत में ज्यादा इजाफा होने की बिना पर हॉस्टल में जेर तालीम तलबा में ब्लैंकेट की दस्तियाबी की इत्तला हासिल करके इन्हें 15,000 रुपए की मुसारिफ से तकरीबन 80 तलबा में मुफ्त ब्लैंकेट की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। ఇంకేంటంటే మేడం ఈ జనవరి 16వ తారీఖున గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో రక్తదాన శిబిరం కార్యక్రమం చేస్తున్నాం మేడం. మ్యాక్సిమం ఒక 100 మందితో ఈ కార్యక్రమం చేపడతాము. 100 నుంచి 75 మంది రక్తం ఇచ్చే విధంగా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం మేడం. దీన్ని కూడా మీరు కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. ఈ మండల రెడ్ క్రాస్ ప్రెసిడెంట్ తహసీల్దార్ లతా గారికి, అదేవిధంగా MPDO గారికి, SI గారికి, మా బృందానికి, జిల్లా నుంచి వచ్చిన బృందానికి, అదేవిధంగా మోయిజ్ గారికి, వారి బృందానికి అందరికి కూడా నమస్కారం. అదేవిధంగా పత్రికా విలేకరులకు నమస్కారం, పిల్లలకు ఆశీర్వాదాలు. ముఖ్యంగా ఈ మండల కమిటీని ఎంపిక చేసిన ఫస్ట్ मोरताड़ मंडल के मुकाम पर MPP शिवलिंगु श्रीनिवास की सदारत में मुनाकिदा इजलास में जिले लाइब्रेरी चेयरमैन LMB राजेश्वर के हाथों हुकूमत की जानिब से पोषण अभियान के तहत मंजूर करदा स्मार्टफोन की आंगनवाड़ी टीचर्स को फ्राहमी अमल में लाई गई। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर MPP शिवलिंगु श्रीनिवास की सदारत में मुनाकिदा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले लाइब्रेरी चेयरमैन LMB राजेश्वर, ZPTC बदम रवि, मंडल TRS पार्टी सदर K इलैया वो दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से पोषण अभियान के तहत मंजूर करदा स्मार्टफोन को मोरताड़ मंडल की 35 आंगनवाड़ी टीचर्स को फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में DCCB डायरेक्टर M बुमन्ना, मंडल के सरपंच फोरम सदर भोगा धरनी आनंद, MPTC तहसीलदार श्रीधर,
मेंबर MPDO श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। तहवारों व तकारीब से क़ब्ल तहदीदात आयद की जाए, हाई कोर्ट अंदरून 2 यौम फैसले की हिदायत। तेलंगाना आने वाले मुसाफिरीन के मुआयने भी किए जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र त्योहारों, क्रिसमस, साल नौ और संक्रांति से क़ब्ल तहदीदात आयद की जाए। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने और जस्टिस N तुकाराम जी पर मुश्तमिल एक बेंच ने कोरोना मसले पर दायर करदा मफादामे की दरख्वास्त की समाअत करते हुए रियासती हुकूमत को ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने सख्त इक़दामात की हिदायत दी, वाज़े करते हुए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। हाई कोर्ट ने रियासत को हिदायत दी कि वो आइंदा त्योहारों और तकारीब के पेश नज़र अवामी इज्तिमात पर तहदीदात आयद करे। बेंच ने हुकूमत तेलंगाना को ये भी हिदायत दी कि दूसरी रियासतों से जो मुसाफिरीन रियासत को आ रहे हैं, इनके भी मुआयने किए जाएं। बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी कि त्योहारों और दीगर तकारीब के इनेकाद को रोकने या इनके तहदीदात के साथ इनेकाद को यकीनी बनाए। हाई कोर्ट ने हुकूमत को इन अहकामात पर अमलावरी के लिए 2 यौम की मोहलत फराहम की। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो 19 दिसंबर को मरकजी हुकूमत से जारी रहनुमाना खतूत पर अमल को यकीनी बनाए। तेलंगाना में कोरोना बिलखुसूस नई किस्म ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद में इजाफे पर हाई कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से इफ्तिसार किया कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और त्योहारों के दौरान गहमा गहमी और हुजूम पर काबू पाने क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो क्रिसमस, साल नौ और तिल संक्रांत के मौके पर तहदीदात आयद करके कोरोना से महफूज रहने रहनुमाना खतूत पर अमल को यकीनी बनाए। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद महकमे सेहत के अलावा दीगर मुतालिका महकमे जात की जानिब से रियासत की तमाम सरहदों पर रियासत में दाखिल होने वालों के मुआयने के इक़दाम का जायजा लिया जाने लगा है। जा रहा है कि हाई कोर्ट की हिदायत के बाद तेलंगाना में दाखिले के लिए मनफी RT-PCR लाजमी किया जा सकता है और किसी भी जरिए से सफर करने वालों को कोरोना वायरस की मनफी रिपोर्ट पेश करनी पड़ सकती है। मिसेस आकुला ललिता सदनशीन रियासती विमेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन का जायजा लेने पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने साबिका रुकन कानून साज कौंसिल मिसेस आकुला ललिता जुबली हिल्स हैदराबाद में वाक़ कॉरपोरेशन अज़ा में बहसियत सदनशीन तेलंगाना विमेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन के तौर पर ओहदे का जायजा लेने पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के तबादले व तकर्रुरात के मुतालिक रहनुमाना खतूत जारी। रियासती हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन की तैयारियों के साथ नए इलाके के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक रहनुमाना खतूत जारी करते हुए काउंसलिंग के तहत मुलाजमीन का तबादला व तकर्रुरात अमल में लाने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इसी तरह से जिला इंतजामिया की जानिब से 1 हफ्ते में तबादले के मरहले को मुकम्मल करने के लिए अहकामात जारी किए गए हैं और मुलाजमीन को पोस्टिंग देने के बाद 3 यौम तक मुलाजमत पर हाजिर होने की मोहलत दी गई है। बहसियत कलेक्टर नारायण रेड्डी के जिले में 2 साल मुकम्मल करते हुए साफ व शिफाफ खिदमात की फराहमी में इनका कोई सानी नहीं। जिले निजामाबाद कलेक्टर के तौर पर नारायण रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा लेकर पहले मरहले के तौर पर एक आम आदमी के हुलिये में साइकिल पर सवार होकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेरे इलाज मरीजों से तिब्बी इमदाद के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात हासिल करते हुए खिदमात अंजाम दही में लापरवाही करने वाले तिब्बी अमले को शोकाज नोटिस हवाले की और इसी तरह से जिले के तमाम अवाम व मुलाजमीन और किसानों के साथ भरपूर इंसाफ करते हुए सबको अपना हमनवा बनाकर अवाम के दिलों पर अपनी एक शनाख्त व छाप छोड़ने में 100% कामयाबी हासिल करते हुए बहसियत कलेक्टर के तौर पर 2 साल मुकम्मल करके साफ व शिफाफ खिदमात अंजाम देने में इनका कोई सानी नहीं होने का किया इजहार। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम फेल उम्मीदवारों को कामयाब करने का तेलंगाना हुकूमत ने लिया फैसला। रियासती वजीर ने किया सहाफती बयान जारी। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम फेल उम्मीदवारों को कामयाब कर देने का ऐलान किया है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात में 51% तलबा फेल हुए थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सिलसिले पर। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तमाम फेल उम्मीदवारों को कामयाब किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला। रियासती वजीर ने किया सहाफती बयान जारी। बहसियत तेलंगाना स्टेट वुमेन फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता ने अपने ओहदे का लिया जायजा। मुत्तहदा जिले में के कविता MLA बीगाला गणेश गुप्ता, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व दीगर ने दी मुबारकबाद।
सरकारी ओहदेदारों के तबादले के लिए रियासत भर में आला ओहदेदारों की जानिब से रहनुमाना खतूत जारी, अंदरून एक हफ्ते तमाम मराहिल को मुकम्मल करने की दी हिदायत। सियासत के नाम पर मजहबी तफरीक पैदा करने व एक ही मजहब की अवाम को निशाना बनाने वाले अफराद के खिलाफ महकमे पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद की पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय से मुलाकात। उर्से शरीफ हजरत कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह व हजरत फतेहुल्लाह शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का हस्बे रुआयत जोश व खरोश के साथ एहतिमाम, अवाम की कसीर तादाद में की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।